हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिंग्वालिट कैपिटल। तो आज हम डिस्कस करेंगे सलमान रश्दी की एक मोस्ट फेमस नॉवेल मिडनाइट चिल्ड्रन को। एंड एट फर्स्ट हम इनकी बायोग्राफी देख लेते हैं। तो इनका जन्म 19 जून 1947 में मुंबई में एक कश्मीरी मुस्लिम फैमिली में हुआ था। एंड ही वॉज एजुकेटेड एट रग्बी स्कूल इन इंग्लैंड एंड लेटर किंग्स कॉलेज इन कैम्ब्रिज वेर ही अर्नड हिज हिस्ट्री डिग्री. And if we talk about his starting career, so he worked as an advertising copywriter in London for much of the 1970s while beginning his writing career. And he is British Indian novelist known for blending magic realism with historical, post-colonial and political themes. And he is also known for his writing style like chutney fiction, which means language mixing English with Indian cultural context, magic realism and satire. And Grimace is the work is science fiction novel and fantasy published in 1975, and other works like Midnight Children published in 1981, Shame 1983, Haroun and the Sea of Stories 1990, The Moor's Last Child 1995, The Ground Beneath Her Feet 1999, Shalimar the Clown 2005, Quixote 2019, The Enchantress of Florence 2008, and 2 years 80 months and 28 nights 2015. And here are some of his collections. First one is Homeless by Choice published in 1992, East and West 1984, The Best American Short Stories 2008, and Luca and the Fires of Life. It's a children book published in 2010. So, Midnight Children is a sprawling novel about the partition and independence of India that won the Booker Prize and also called the Booker of Bookers and Best of the Booker. And Midnight Children is famously associated with the 1980 novel The Satanic Verses, which triggered a fatwa calling for his death. And it is one of the most celebrated novel in post-colonial literature and a groundbreaking work blend history, fantasy and personal narrative to tell the story of India's transition from colonial rule to independence and beyond. The novel is widely regarded as a masterpiece of magical realism, a style associated with writers like Gabriel Garcia Marquez. And the significant character of his work is that the novel recognized Indian English literature by introducing a new narrative style that blends Western and Eastern traditions, paved the way for fortune writers to explore post-colonial themes with creativity and boldness. So now let's move on to the novel, जिसमें 15 अगस्त 1947 जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उस वक्त की बात बताई जा रही है। तो इसमें स्टार्टिंग नोवेल में मेन कैरेक्टर ये जो सलीम है ना, यही नोवेल का प्रोटैगनिस्ट एंड नरेटिव दोनों होता है। और सलीम ये बताता है कि 15 अगस्त 1947 की आधी रात में ये पैदा हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ था उसी के मिडनाइट सलीम पैदा हुआ था, यानी कि आज़ादी के 1 घंटे के अंदर। एंड अभी ये जब इस स्टोरी को बता रहा है तो इस वक्त ये 30 इयर्स का हो चुका है और 31st बर्थडे इसका आने वाला है। इसको ऐसा फील हो रहा है कि धीरे धीरे इसकी बॉडी इसका साथ छोड़ रही है, यानी अब उतना साथ नहीं दे रही है। एंड इसका शरीर जो है वो थका थका सा लग रहा है, जिस वजह से ये परेशान हो रहा है कि कहीं ये मर ना जाए। तो ये अपनी जो भी स्टोरी है ना, वो सारी स्टोरी पद्मा को सुनाता है, जो कि एक लेडी होती है। तो सलीम की कहानी शुरू होती है कश्मीर से। 1915 का टाइम था, यानी सलीम के पैदा होने से जस्ट 32 इयर्स पहले की बात वो बताता है। तो वो बताता है कि उसके नाना आदम अजीज़, जो कि जर्मनी से पढ़ के आए थे और एक डॉक्टर थे, और वो एक लेडी जिसका नाम नज़ीम था, इसका इलाज कर रहे थे, उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। एंड 3 इयर्स से
ये 3 इयर्स से इनका कंटिन्यू इलाज कर रहे थे, बट अभी तक इन्होंने आदम ने उनकी शक्ल तक नहीं देखी थी। मतलब जो बॉडी में जो भी जिस भी जगह प्रॉब्लम होती थी उस जगह उसका इलाज कर देते थे, बट फेस अभी तक नहीं देखा था। तो 3 सालों बाद जब 1918 का वक्त था, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड हुआ था, तो उस टाइम कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई थी जब इन्होंने इसका फेस देखा था और देखते ही इनको इनसे प्यार हो गया और इन्होंने इनसे शादी कर ली थी। मतलब आगे चल कर के यही इनकी सलीम की नानी बनती हैं। और शादी के बाद ये दोनों कश्मीर से आगरा चले आते हैं और यहाँ आकर के इनको 3 डॉटर्स एंड 2 सन होते हैं। एंड यहाँ पे आकर के ना ये इतने समझदार होते हैं, जर्मनी से पढ़ के आए थे, डॉक्टर थे, बट फिर भी एक मियाँ अब्दुल्ला नाम का ऑप्टिमिस्ट एक्टिविस्ट होता है, इसके ये फॉलोवर बन जाते हैं। इसको बाद में मार दिया जाता है, लेकिन इसका जो ये असिस्टेंट होता है नादिर खान, इसको ये अपने बेसमेंट में छुपा लेते हैं, वहाँ जगह दे देते हैं। इनकी वाइफ बहुत मना करती हैं, इनके अगेंस्ट भी रहती हैं कि ऐसा मत करो, बट ये इनकी बात नहीं मानते और इसको अपने बेसमेंट में जगह दे देते हैं। तो क्या होता है कि इनकी जो 3 बेटियां थीं उनमें से एक थी मुमताज़, तो इसको नादिर से प्यार हो जाता है और ये सीक्रेटली इनसे शादी कर लेती है। लेकिन शादी के 2 साल बाद आदम को ये पता चलता है कि अभी तक जो नादिर है इसने अभी तक मुमताज़ को हाथ भी नहीं लगाया है, मतलब शी इज़ स्टिल वर्जिन। तो एक दिन क्या होता है कि नादिर अचानक मुमताज़ को छोड़ कर के भाग जाता है, बट इसके जाने के बाद भी ये मुमताज़ जो है वो अकेली नहीं पड़ती है और इसका अट्रैक्शन ये अहमद सनई की तरफ बढ़ जाता है और फिर ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद ये अपना नाम बदल करके अमीना कर लेती है, अमीना सिनई। मतलब कि यही आगे चल के सलीम की माँ होती हैं। और शादी करने के बाद ये लोग आगरा से दिल्ली चले आते हैं। यहाँ आकर के ये प्रेग्नेंट होती है और यहाँ पे ये एक फॉर्चून टेलर से मिलते हैं जो इसको ये बताता है कि इनका बच्चा देश के साथ बड़ा होगा। तभी क्या होता है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अहमद, जो कि अमीना का पति होता है, इसकी फैक्ट्री जला देता है, जिसके बाद ये दोनों दिल्ली छोड़ कर के मुंबई चले आते हैं और वहाँ पे आकर के एक अंग्रेज़ आदमी जिसका नाम विलियम मैथोल्ड होता है उससे एक घर किराए पे लेते हैं, वो वहीं रहने लगते हैं। और इस अंग्रेज़ आदमी के घर में ये विली विंके जो है ये काम करता था और इसकी वाइफ थी वनीता जो कि प्रेग्नेंट होती है। एंड यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि ये वनीता विंकी से नहीं प्रेग्नेंट होती है, ये प्रेग्नेंट होती है इस अंग्रेज़ आदमी से, विलियम मैथोल्ड से। तो अब वनीता एंड अमीना दोनों ये प्रेग्नेंट होती हैं और ठीक 15 अगस्त की आधी रात को जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था उस वक्त ये दोनों ही एक एक बेटे को जन्म देती हैं। तो जिस जगह ये इन दोनों बच्चों ने जन्म लिया था वहाँ पर एक नर्स होती है मैरी पेरेरा। तो ये क्या करती है ना कि ये इन दोनों के बच्चों के टैग बदल देती है। मतलब कि अब जो अमीना का बच्चा था वो वनीता के पास और वनीता का अमीना के पास जाके बड़ा होगा। तो ये इन दोनों बच्चों के टैग तो बदलती ही बदलती है, लेकिन साथ ही इन दोनों बच्चों की डेस्टिनी भी बदल देती है। बट बाद में इसको काफ़ी इन चीज़ों का रिग्रेट फील होता है कि उसने जो किया वो बहुत गलत किया। तो बाद में इसने क्या किया कि ये सलीम जो होता है अमीना के पास बेटा इसके पास जाके इसकी गवर्नेंस बन जाती है और बिल्कुल माँ की तरह उसका ध्यान रखती है। तो क्योंकि ये सलीम 15 अगस्त की आधी रात को पैदा हुआ था, जिस वजह से इसकी नाक बहुत अजीब सी थी, ब्लू आइज़ होती हैं, और इसी वजह से इसकी छोटी बहन जो कि बाद में होती है जालिमा सिनई, इसकी छोटी बहन और इसके फ्रेंड्स इसकी नाक की वजह से इसका बहुत मजाक बनाते थे, जिस वजह से ये कभी कभी जा कर के बाथरूम में खुद को बंद कर लेता था। तो एक दिन क्या होता है कि ऐसे ही अपने बाथरूम में खुद को बंद कर लेता है और उसी समय टॉयलेट यूज़ करने के लिए इसकी माँ वहाँ आती है। और तो जब ये सलीम को वहाँ देखती हैं तो उनको पनिश करती हैं कि तुम एक दिन तक बिल्कुल नहीं बोलोगे, शांत रहोगे। तो इसको अपने एक मतलब जब ये पूरे दिन बिल्कुल शांत रहता है ना, तो इसको अपने अंदर के एक अलग से स्ट्रेंज पावर का पता चलता है कि इसके माइंड में
इसको कई सारी आवाज़ें, हज़ारों आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो इसके बारे में ये जाकर के अपनी फैमिली को भी बताता है और इसकी माँ अमीना ये समझ जाती है कि इसको टेलीपैथी की पावर मिली है, मतलब कि ये अपने माइंड के थ्रू कई लोगों से कम्युनिकेट कर सकता था। एक्चुअली क्या हुआ था कि 15 अगस्त 1947 के वक्त आधी रात में जब देश आज़ाद हुआ था, उसके 1 घंटे के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हुए थे ना, उन सभी को एक एक मैजिकल पावर मिली थी। एंड उस वक्त टोटल 1001 बच्चे पैदा हुए थे, बट उनमें से केवल 10 साल बाद, इसके ठीक 10 ईयर्स बाद में केवल 581 बच्चे ही सरवाइव कर पाए थे। मतलब कि 10 साल के अंदर अंदर आधे बच्चे तो मर गए थे, जिनमें से एक ये सलीम था एंड 580 और थे। तो आगे क्या होता है कि ये अहमद जो है ना, इसने गलत जगह पे अपना पैसा लगा दिया था और इसका पैसा जो वहाँ पे डूब जा रहा था, मतलब बर्बाद हो गया था। इन्हें सबके बीच एक क्या होता है कि इन्हीं सबके बीच स्कूल में एक एक्सीडेंट होता है कि सलीम की फिंगर कट जाती है और उसका काफ़ी ब्लड बह जाता है। तो इसके पेरेंट्स इसको भाग करके डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं, जहां डॉक्टर ये बताता है कि सलीम का काफ़ी ब्लड बह चुका है और उसको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके पेरेंट्स रेडी हो जाते हैं कि ठीक है, हमारा ब्लड चढ़ा दीजिए। तो डॉक्टर वहाँ पे उनको ये बताता है कि आप दोनों में से किसी का भी ब्लड सलीम के ब्लड से मैच नहीं कर रहा है। और वहीं पे अहमद को ये पता चलता है कि सलीम इसका असली बेटा नहीं है। तो जब घर वालों को ये पता चल जाता है कि सलीम इनका असली बेटा नहीं है, तो उस वक्त मैरी पेरेरा जो थी, इसने भी अपनी जो इसकी गलती करती है जो टैग बदलने की, वो ये कन्फेस कर लेती है कि हाँ, इसी ने दोनों बच्चों के टैग बदले थे। और इसको अपनी गलती का काफ़ी रिग्रेट भी फील होता है, बट फिर वो क्या करती है कि उस घर को छोड़ के, उस फैमिली को छोड़ कर के वहाँ से चली जाती है, सोच के कि छोड़ो, इन दोनों की डेस्टिनी है, अब जो होगा सो देखा जाएगा, ये सोच के उस फैमिली से चली जाती है। तो इधर क्या था कि एक तो ये सच सामने आ जाता है, जिस वजह से ये और अहमद परेशान हो जाता है और इसका पैसा भी डूब गया था पूरी तरीके से। मतलब इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो जाता है, तो और अपनी फैमिली को भी परेशान करने लगता है। तो ये अमीना क्या करती है कि अपनी बेटी और अपने बेटे को लेकर के पाकिस्तान चली जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में अपने रिलेटिव्स के पास चली जाती है और वहाँ पे जालिमा ये काफ़ी अच्छी सिंगिंग करती थी, तो इसको वहाँ जाके काफ़ी फेम मिलती है। बट फिर 4 साल बाद क्या होता है कि अहमद की हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है उसको, जिस वजह से उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर 4 साल के बाद इनको वापस लौट करके इंडिया आना पड़ता है। तो अब यहाँ अचानक क्या होता है कि सलीम को साइनस इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से उसकी नाक का ऑपरेशन करवाना पड़ता है और उसकी जो टेलीपैथी की पावर थी वो खो जाती है। तो यहाँ एक और बात थी जो कि अब तक नहीं बताई गई हमने, कि सलीम जो है वो उस 15 अगस्त को 1947 में जितने भी बच्चे उस आधी रात में मिडनाइट चिल्ड्रन जो भी पैदा हुए थे, उन सबको ये जानता था, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज अमेजिंग माइंड पावर टेलीपैथी। बट अब तो वो पावर उसकी ख़त्म हो गई थी, खो चुकी थी। बट तभी क्या होता है कि इसके नोज़ में एक ज़बरदस्त सूंघने की पावर आ जाती है। ही कैन स्निफ जस्ट लाइक अ डॉग। तभी उसकी फैमिली क्या करती है कि पूरी फैमिली, ये जो पूरी फैमिली थी, ये पूरी फैमिली पाकिस्तान चली जाती है वापस इंडिया से। और वहाँ पे जाकर के इसकी सिस्टर को अच्छी सिंगिंग की वजह से काफ़ी फेम मिलती है। और इसके जो फादर थे सलीम के, अहमद, ये भी अपनी बेटी की फेम को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी हैप्पीनेस थी इनकी फैमिली में, बट इनकी हैप्पीनेस ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। हालात सुधर रहे हैं ऐसा लग रहा था, बट ज़्यादा वक्त तक ऐसा नहीं रहा, क्योंकि क्या होता है कि पाकिस्तान में जिस जगह पे ये लोग रह रहे थे वहाँ पे अचानक बम धमाका हो जाता है और इनके मम्मी और पापा की डेथ हो जाती है। बचते हैं सिर्फ सलीम और उनकी बहन। तभी अचानक क्या होता है कि आसमान से कुछ गिरता है, जिस वजह और जो जाके सीधे इसके माइंड पे टकराता है, जिस वजह से ये अपनी याददाश्त खो देते हैं, इनकी मेमोरी लॉस हो जाती है और ये सब कुछ भूल जाता है, इसको कुछ भी पता नहीं रहता। फिर कुछ वक्त में अचानक क्या होता है पता नहीं कैसे, बट ये पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती हो जाता है।
और आर्मी क्या करती थी ना कि इनकी ये जो सूंघने की पावर थी उसका ये लोग फ़ायदा उठाते थे। तो अब क्या होता है कि 1971 का टाइम था, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मिड वॉर छिड़ जाती है। तो ये सलीम है जो है वो अपने ग्रुप को लीड करता है और बांग्लादेश लड़ने के लिए जाता है। तभी उसी वक्त जंगल में क्या होता है कि इसकी याददाश्त वापस आ जाती है और ये अपनी स्टोरी अपने 3 साथियों को बताता है। बट वहीं पर लड़ाई के टाइम पे क्या होता है कि इसके सारे साथी जो हैं वो मारे जाते हैं और सिर्फ सलीम बच जाता है। तो फिर बाद में ये लौट करके पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान आकर के ये एक लड़की से मिलता है जिसका नाम था पार्वती। तो अब इसको कोइंसिडेंस ही कह सकते हैं कि ये जो पार्वती थी ना, ये भी उन्हीं मिडनाइट चिल्ड्रन में से एक थी जो 15 अगस्त की आधी रात को पैदा हुए थे। और सभी मिडनाइट चिल्ड्रन की तरह इनको भी एक मैजिकल पावर मिली थी। तो ये क्या करती है कि अपने मैजिकल पावर का यूज़ करके सलीम को पाकिस्तान से इंडिया वापस ले आती है। तो अब भारत आकर के सलीम सिर्फ एक ही रिलेटिव बचते हैं इसके उस वक्त में, एक अंकल थे इसके जो कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करते थे। तो उस वक्त सलीम उनके पास गया उनसे मिलने के लिए, तो वो भी उसे पहचानने के लिए मना कर देते हैं। मतलब उनको यकीन ही नहीं था कि ये लड़का जो है वो सलीम है। अब सलीम की सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं और ये स्लम में पार्वती से मिलने के लिए आता है, उसके पास आता है। तो पार्वती उससे बोलती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, बट सलीम जो है ना वो मना कर देता है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तो अब ये जो पार्वती है ये शिवा की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जो कि अहमद और अमीना का असली बेटा होता है शिवा, उसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो जाती है। बट क्या होता है कि ये शिवा से प्रेग्नेंट हो जाती है और शिवा इससे शादी नहीं करता, इसको छोड़ करके भाग जाता है। तो एंड में क्या होता है कि सलीम को ही पार्वती से शादी करनी पड़ती है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका बच्चा बिना पिता के बड़ा हो। तो उस वक्त भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी होती थी, जिनको मैजिक वगैरह में बहुत ज़्यादा विश्वास था। और इंदिरा गांधी को ये पता चला जब कि इन मिडनाइट चिल्ड्रन के बारे में कि 15 अगस्त 1941 में उस रात जितने भी बच्चे पैदा हुए थे 1 घंटे के अंदर, उन सभी को एक एक मैजिकल पावर मिली है। तो वो क्या करती हैं ना कि वो जो शिवा होता है इसकी हेल्प से सलीम को बुलाती हैं और उससे टॉर्चर करके पूछती हैं कि बताओ उन सभी मिडनाइट चिल्ड्रन के बारे में जो जो उस रात में पैदा हुए थे। क्योंकि पहले ही जैसा कि हमने बताया था कि सलीम के पास टेलीपैथी की पावर थी, जिस वजह से वो उन सभी मिडनाइट चिल्ड्रन के बारे में जानता है और इसी वजह से वो सलीम से पूछताछ करती हैं। अब ऐसे में उसी वक्त पार्वती ने एक बेटे को जन्म दिया, बट उसकी डेथ हो गई। अब ऐसे में इंदिरा गांधी ने पूरे भारत में इमरजेंसी लगवा दी और सारे मिडनाइट चिल्ड्रन के मैजिकल पावर्स को अपने पास कलेक्ट कर लिया। और संजय गांधी ने भी भारत में नसबंदी करवा दी। बट फिर भी क्या होता है कि इंदिरा गांधी जो है वो इलेक्शन नहीं जीत पाती हैं। फिर बाद में इंदिरा गांधी ने सभी मिडनाइट चिल्ड्रन को फ्री कर दिया और सलीम पार्वती के बेटे को ढूंढने के लिए निकल गया और उसके बेटे को लेकर के वो बॉम्बे चला गया, जहाँ पर उसने एक फैक्ट्री की चटनी को टेस्ट किया और उसे उसका टेस्ट बिल्कुल वैसा लगा जैसा बहुत पहले उसकी गवर्नेंस बनाती थी उसके लिए। एक्चुअली क्या था कि उसके गवर्नेंस ने एक चटनी फैक्ट्री शुरू कर दी थी अपनी खुद की, एंड वहीं पर इसको ये पद्मा भी मिली थी, जिसको अभी अपनी अब तक की ये सारी स्टोरी बता रहा है। एंड ये डिसाइड करता है कि ये पद्मा से शादी कर लेगा, बट ऐसा नहीं हो सका क्योंकि इसके 31 बर्थडे पर 15 अगस्त को भारत की आज़ादी वाले दिन ही सलीम की डेथ हो गई, जैसा कि इसके लिए प्रेडिक्ट किया गया था। And this is the end of this novel. So, Midnight Children is not just a story about one man's life, but a sweeping narrative of a nation's birth and growth. Through Salim Sanai, Salman Rushdie captured the complexity of identity, history and memory in post-colonial India. Its innovative style, rich symbolism and deep thematic concerns make it a landmark work in world literature, ensuring its place as a timeless classic.